کسی ذہن میں کوئی سوال ہو؟ سوال ہے کیا اسلام میں بارات لے جانا حرام ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا بارات لے جانا حرام ہے اسلام میں؟ بھائی یہ تو بہت سخت لفظ ہے، حرام نہیں ہے۔ حالانکہ بارات ثابت کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام بارات لے کے جاتے ہوں، تو اگر سنت سے چلنا ہے تو بارات لے جانا ٹھیک نہیں ہے، مگر حرام لفظ نہیں استعمال کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تب جا کے یہ بات کہی تھی کہ انصار کی جو روایتیں ہوں شادی بیاہوں کی، تہواروں کی، انہیں اسی طرح سے قائم رکھیں، بس کوئی شرک کا پہلو نہ ہو۔ اس کا مفہوم ہے اس کا۔ اگر آپ کے علاقے میں ایک کلچر ہے بارات لے جانے کا، اگر آپ واقعی سنت کے زیادہ قریب رہنا چاہتے ہیں، نبی کی بے انتہا محبت ہے، تو آپ کو بارات بھی لے جانی چاہیے، لیکن حرام نہیں کرنا، سخت لفظ ہے۔ اگر کچھ رقم مسجد میں دینے کا ارادہ کیا ہو، پھر ایک پریشان رشتہ دار ضرورت مند کو دے دی جائے، تو کیا اسے دیتے ہیں یا مسجد میں دینا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کچھ کوئی رقم مسجد میں دینا ارادہ کیا، کام ہو گیا، وہ رقم دینی ہے، کوئی رشتہ دار آ گیا، اب وہ رقم مسجد میں دیں اس رشتہ دار کو اس کی پریشانی دور کرنے کی۔ بھائی آپ نے جو نیت کی وہ اللہ کی راہ میں دینے کی، ویسے میں وضاحت یہ کر دوں، سب لوگ نیت یہ کیا کرو کہ میں اللہ کی راہ میں دوں گا، اپنے دل میں چاہے مسجد رکھو، مدرسہ رکھو، پھر موقع لگے تو وہاں بھی دے دو، لیکن اصل تو اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ تو آپ میرے نزدیک آپ کو اپنے رشتہ دار کی مدد کرنی چاہیے، اور انہیں بتا دینا چاہیے بھائی میرا ارادہ مسجد میں دینے کا تھا، جب حالات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ مجھے دے دینا یا خود مسجد۔ ایک سوال ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ہے کیا طریقہ ہے؟ بھائی کوئی طریقہ اس طرح سے تو حدیثوں سے تو ملتا نہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آتا ہے کہ وہ خود خواب میں آ جائے، اور بزرگوں نے بہت سارے طریقے بیان کیے ہیں، جس میں سب سے بڑا طریقہ تو درود شریف ہے کہ آپ درود کی کثرت رکھیں اور طے کر کے درود بھیجا کریں، ایک تصویر دو تصویر جو بھی آپ طے کریں۔ لیکن میں یہ کہوں گا آپ سے کہ دعا یہ کیا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اچھی حالت میں نظر آئے۔ بہت سے لوگ اس چکر میں جو ہے وہ حضور کو دیکھنے کے لیے عمل کرتے ہیں، مگر حضور انہیں بری حالت میں نظر آتے ہیں کیونکہ امت کی حالت بہت بری ہے، اس ٹائم انہیں تکلیف ہوتی ہے، وہ بتا بھی نہیں پاتے، اندر اندر انہیں عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ حضور کو انہوں نے میلے کپڑوں میں، بڑی داڑھی میں، بکھرے بالوں میں دیکھا، یا بیمار دیکھا، یا لاغر دیکھا۔ تو وہ اس لیے دعا یہ کریں جنہیں دیکھنے کا شوق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک ہمیں اچھی حالت میں دکھائے اور ہماری حالت بھی اچھی کر دے۔ کچھ بزرگوں نے طریقے بتائے ہیں، مجھے ہی بتائے تو میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک صاحب نے تو مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ مغرب میں 2 نفل شروع کر دیں اور دونوں رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو حضور کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو الحمدللہ میں جب سے معمول میں ہے میں اور اس کا فائدہ بھی نظر آیا الحمدللہ۔ اور تو یہ ہے، دوسرے ایک اور صاحب نے بات بتائی تھی کہ آپ طے کر کے ایک تصویر درود کی کمرے میں ایک جگہ بنا لیں الگ، اور وضو کر کے ٹوپی لگا کے خوشبو لگا کے یا امامہ باندھ لیں اور ایک طرف بیٹھ کے اور مدینے کی طرف کر کے ایک تصویر جو ہے اس کی درود شریف بھی پڑھنا شروع کر دیں، اگر بتی بھی لگا لیں اگر وہاں لگا سکیں۔ لیکن یہ سب بزرگوں کا قول ہے، نبی کا قول نہیں ہے، اوتھینٹسٹی کچھ نہیں ہے بھائی۔ اگر آپ کریں اللہ نے چاہا فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو، اور نہیں بھی ہو سکتا ہے اللہ کے حکم۔ ایک سوال ہے کیا قرآن کو غلاف میں رکھنا گناہ ہے؟ نہ رکھنا گناہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن کو غلاف میں نہ رکھنا گناہ ہے۔ بھائی یہ تو پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے ابھی اب آپ کو بتایا کہ جو لوگ جن چیزوں کو گناہ کہہ دیتے ہیں بنا سوچے سمجھے، بنا معلومات کے، وہ اللہ رسول پہ الزام لگا رہے ہیں۔ گناہ اور ثواب کا جو معاملہ ہے وہ اللہ رسول نے طے کر دیا، تو اگر معلومات نہ ہو تو اس طرح کی بات نہ کیا کریں۔ بھائی خلاف جو ہے وہ جو ایک مقدس کتاب ہے اسے دھول دھاپڑ یا کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے خلافوں میں رکھنا جو ہے لوگوں نے شروع کر دیا تھا۔ اگر آپ رات دن قرآن پڑھتے ہیں اور آپ کے بیڈ کے کنارے پہ بھی رکھا ہوا ہے اور آپ کی ٹیبل پہ بھی رکھا ہوا ہے اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے دھومدھان کی۔ لیکن اگر آپ
महीनों महीनों सालों सालों उठा के नहीं देखते। जो आज कल के हालात हैं घरों के, ये तो जुज़दानी चीज़ है कि उसमें तो कम से कम कीड़ा ना लगे, दीमक ना लगे और धूल तो पड़ दे बेचारे पर। सवाल है, बचपन में बाप ने बेटी का निकाह कर दिया, बड़े होकर लड़की को पसंद नहीं आया तो क्या करे, अब कहीं और करे? इनका सवाल ये, बचपन में लड़की का निकाह किसी से कर दिया बाप ने, बड़े होने के बाद लड़की को वो दूल्हा पसंद नहीं आया तो अब क्या दूसरी जगह निकाह करें? भाई हो ही नहीं सकता निकाह, क्योंकि बाप ने निकाह किया, बच्ची नाबालिग थी, बाप वली था, तो जब तक वो उस शौहर से तलाक नहीं होगी और उसकी इज्जत नहीं करेगी तब तक अगली जगह निकाह नहीं होगी। उस बच्चे ने हाथ नहीं लगाया उसे तो मेहर भी आते होंगे, लेकिन वहाँ से तलाक लेनी पड़ेगी, खुला लेनी पड़ेगी, चाहे कुछ ले दे के खुला लेनी पड़े अगर बच्ची को पसंद नहीं है। लेकिन बिना तलाक लिए वहाँ से कहीं और निकाह कर देना, ना इसके निकाह से निकलेगी ना दूसरे के लिए हलाल होगी। इसी में एक सवाल ये है, मान लीजिए निकाह हुआ है और दोनों अपने घर हैं, लड़की अपने घर है, अभी उसकी रुखसत ही नहीं है और इस दौरान बीच में हो गई तलाक, उसे पसंद नहीं है, तो क्या उसके बावजूद उसे जो है इज्जत करनी पड़ेगी क्योंकि शौहर ने तो हाथ लगाया नहीं? इनका सवाल ये है, मियाँ बीवी घर हो भी वो ना हुई हो रुखसती और हाथ भी ना लगाया हो तो क्या फिर भी तो उतना ही भाई, फिर इज्जत नहीं होगी। कुरान तो यही कहता है कि अगर शौहर ने हाथ नहीं लगाया तो कोई इज्जत नहीं। एक सवाल है, क्या हामला औरत के सामने खूबसूरत बच्ची की तस्वीर लगाने से खूबसूरत बच्चे होते हैं? ये भी मेरे से बहुत सवाल पूछा जाता है भाई, ये कि भाई जो हामला औरतें हैं, जो प्रेग्नेंट बच्ची हैं, वो अपने कमरों में दीवारों पर खूबसूरत बच्चों की फोटो लगा लेती है जिससे कि आने वाला जो बच्चा उनका न्यू बॉर्न बेबी हो वो खूबसूरत हो। ये बेकार की बातें हैं। कुरान में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि मैं माँ के पेट में जैसी मर्जी सूरतें बनाता हूँ, खूबसूरत या बदसूरत। तो आप अल्लाह से मांगो ना, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, ये दुआ पढ़ा करें और अपने पेट पे हाथ रख के 7 बार अब्दुल शरीफ पढ़ें, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन क़दीर पढ़ें 21 बार। इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह से दुआ करेंगी तो अल्लाह बहुत खूबसूरत बच्चा आपको देगा। इस तरह की तस्वीरें लगाने से कुछ नहीं होता, बल्कि और एक हदीस ये है कि जिस घर में कुत्ता है तस्वीर होगी वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। कोई ऐसा ना हो कि इस हरकत से अल्लाह ही आपकी नाराज़ हो जाए, इसलिए इससे बचे, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करें और अल्लाह से मांगे, 2 नफिल मान लें, सलात और सब्र से अल्लाह ने कहा कि मेरी मदद चाहो, और 2 नफिल पढ़ के अल्लाह की मदद चाह करें कि अल्लाह हमारा जो आने वाला बेटा हो, बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, खूबसूरत भी हो, दीनदार भी हो, ज़हीन भी हो, नॉर्मल हो, सब कुछ अपने अल्लाह के आगे रखें। इन चीज़ों से बेकार की बातें हैं। अच्छा, सिराज साहब तफसीर कर रहे थे तो कहते कि हर आयत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, तो जैसे नमाज में पढ़ता है अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद भी बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। इनका सवाल ये है कि सूरतों से पहले, अलहम्दुलिल्लाह से पहले क्या बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी चाहिए? बिल्कुल भाई, जब कुरान में अल्लाह ने उतारी, हर सूरत के साथ उतारी सिवाय सूरत तौबा की, तो फिर पता नहीं क्यों हमारे यहाँ मना करते हैं, क्यों नहीं पढ़ते? पढ़नी चाहिए, अल्लाह का हुक्म है मेरे हिसाब से, हर हाल में सबको पढ़नी चाहिए। हर बार जब भी आप नई सूरत शुरू करें तभी बिस्मिल्लाह पढ़ें। अगर किसी पे अगर प्रॉपर्टी मतलब बीच भी देना है तो उसके लिए आगे हमने बेचने की नीयत भी नहीं है, हम सेल करेंगे तो उसके बाद क्या मामला है भाई? अगर उसका आमदनी है ना, ज़रात की आमदनी पे ज़कात है, जैसे किराए पे है, वो किराए पे ज़कात है। अगर वो ज़मीन है उससे पैदावार आ रही, उस पर ज़कात है। अगर आपने बेचने की नीयत से कोई प्लॉट ले रखा, चाहे वो 10 साल में या 20 साल, फिर उस पर ज़कात होगी, फिर वो आपकी प्रॉपर्टी बिजनेस की प्रॉपर्टी। और कागज कोरोना की वजह से कागज तक जाने न दिया जाए तो ऐसे हालत में आराम से कैसे करना? अच्छा हाँ, ये सवाल भी आया भाई। ये इनका सवाल ये है कि जैसे कोरोना चल रहा है, बहुत से लोग उम्रे को गए और वहाँ ihram की हालत में रहे और काबे के अंदर नहीं जाने दिया गया, तो किस तरह से ihram से बाहर आएंगे? जाहिर सी बात है, वहाँ तवाफ़ और सही के बिना किस तरह? भाई ये आप 14 साल पीछे चले हैं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की नीयत से चले हैं और 7 हिजरी में इन्होंने
कुफ़ार मक्का ने उम्रा नहीं करने दिया और ये तय हुआ कि अगले साल उम्रा करेंगे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने साथ जानवर ले गए थे, उन्होंने तमाम सहाबा को हुक्म किया कि हरम की हद में पहुँचो और वहाँ जाके जानवर ज़िबा करो और आराम की हालत से बाहर आ जाओ। ये तरीक़ा अपनाया जाएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका है कि जो एक जानवर जो है वो ज़िबा किया जाएगा हरम की हद में, क्योंकि काबे तक नहीं पहुँचने दे रहे, बाहर हरम की हद रहती है कई किलोमीटर तक, और आप एहराम की हालत से बाहर आ गए। गुस्ल करते वक्त औरत को बाल खोलना और शैम्पू या साबुन करना ज़रूरी है। इनका सवाल ये है कि मान लो गुस्ल हो, औरत पे वाजिब गुस्ल हो, फ़र्ज़ गुस्ल हो, उसके लिए बाल खोलना और शैम्पू करना ज़रूरी है। बिल्कुल भाई, बाल खोलना ज़रूरी है। और अगर कोई शरई उज़र है, मान लो डॉक्टर ने मना कर रखा, कोई बीमारी है, तो फिर जो उन्होंने चोटी बांधी हुई है उसी पे पानी डाला जाएगा, या जूड़ा रखा हुआ है, या जो भी कोई मजबूरी अगर कोई है तो बंधे हुए बालों पे पानी डालेगा। अदरवाइज़ बाल खोलने इसलिए ज़रूरी है कि ताकि तमाम बालों की जड़ों तक पानी पहुँच जाए, क्योंकि जनाबत का जो असर होता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हज़रत अली को ये बात फरमाई थी, जनाबत का असर जो है बालों की जड़ों तक होता है। तो अगर हम बिस्तरी का गुस्ल है उसमें बहुत ज़रूरी है कि पानी जड़ों तक जाना चाहिए बालों। अच्छा, जो लेडीज़ गुस्ल करती है बैठ के करती है और आजकल शावर चल रहा है, कैसे गुस्ल? इनका सवाल ये है कि अक्सर लेडीज़ बैठ के गुस्ल करती हैं और आजकल शावर चल रहा है। भाई, खड़े होकर गुस्ल करने में कोई मनाही नहीं है, बल्कि खड़े होकर ज़्यादा अच्छी सफाई हो जाती है जिस्म की। अच्छे से हाथ पाथ आदमी अपने हाथों में फेर के उन्हें साफ़ कर सकता है, साबुन वगैरह अच्छे से कर सकता है। लेडीज़ गुस्ल बिल्कुल कर सकती है, कोई मनाही नहीं है, सब अपनी तरफ से बना है। आजकल लड़के फेशियल वगैरह कराते हैं, कहाँ तक ठीक है? इनका सवाल ये आज के लड़के जो हैं वो मेकअप कराते हैं, फेशियल वगैरह, कहाँ तक? भाई, जीनत जो है वो औरतों के लिए है। अगर किसी की कोई मजबूरी हो, मान लो इस तरह का मामला है कि धूप की वजह से उनके चेहरे पे झुलसन आ गई या कोई ऐसा मामला हो गया कि वो जो पसीनों के सुराख होते हैं वो बंद हो गए, फिर तो कोई भी क्रीम जो है डॉक्टर जो बताए वो लगाएं और उससे। लेकिन ये मेकअप कराना इस तरह से जिस तरह औरतें कराती हैं, हुजूर ने जो फरमाया कि भाई औरतों की मुशाबियत जो इख्तियार करेंगे वो मतलब गुनाह है, बड़े गुनाह होंगे। मेरे नज़दीक तो ठीक नहीं है भाई इस तरह के मेकअप कराना। सवाल ये है कि रिश्तेदार जो हैं जेल में बंद है, साहिब इस्तात है नहीं, उनके केस के लिए क्या ज़कात का पैसा खर्च कर देता है? अच्छा, इनका सवाल ये है कि अगर कोई रिश्तेदार जेल में बंद हो और वो गरीब आदमी हो तो उसके लिए ज़कात का पैसा खर्च कर सकते हैं। भाई, उसके बीवी बच्चों को आप ज़कात दें, उन्हें मालिक बनाएं। अगर उसने जुर्म किया तो ऐसे लोगों को तो किसी भी कीमत पर ज़कात के पैसे नहीं छुड़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को ज़कात के पैसे नहीं लगे जो जुर्म करके अंदर गए, उन्हें तो वही रहना चाहिए। इस तरह तो समाज खराब होगा। लेकिन उनके बीवी बच्चों की कोई गलती नहीं होती, उन लोगों के लिए आप राशन का, उनकी एजुकेशन का इसका इंतज़ाम कर दें, उनकी बीवी को महीना बांध दें, कोई वजीफ़ा ऐसा कि उनका हैंडसम रकम हो कि उनका घर का खर्चा चलता है। अभी जैसे आपने बताया था कि जहाँ जिस घर में कुत्ते हो, घर पर रहने के फरिश्ते नहीं आते। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो कि घर जो है दूरी पे है, अकेला है, या इस तरह का एरिया है जहाँ पे चोरी और उसका खतरा है, कुत्तों का रखना ज़रूरी है, तो ऐसे हालत में रख सकते हैं या उसमें भी मना करते हैं? भाई, इनका सवाल ये है कि अगर तन्हाई में कहीं जंगल वगल में जैसे मकान होते हैं या फार्म हाउस होते हैं, क्या वहाँ भी कुत्ते नहीं रख सकते? बिल्कुल इजाज़त है ऐसी जगहों पर रखने की। वो जो हदीस पाक है ना, वो घरों में कुत्ते रख देते हैं। हुजूर ने फरमाया कुत्ता एक दरिंदा है, इसे बस्तियों से दूर रखो। अगर बस्ती से दूर आपका मकान है तो आपको लोगों का डर है, तो खौफ से बचने के लिए, लोगों को खौफ में डालने के लिए अगर आप कुत्ता रखते हैं तो उसको कोई हर्ज नहीं। असल तो वहाँ सारा जो दारोमदार है ना वो अमाल का उन्नीत है। आप किस नीयत से कुत्ता पाल रहे हैं, लोगों को शौकीनी में पाल रहे हैं, आप लोगों के में अपना रोज़ जमाने को पाल रहे हैं, या दुश्मनों से बचने के लिए, डाकुओं से बचने के लिए, समझ लो। बस जी आज इतना ही ठीक है।